Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? Hope you are fine by the grace of Allah Almighty. In this lesson, we will talk about past perfect continuous tense. This is the last tense of past series. We have already covered 3 previous tenses of this particular series. And if you want to learn something about previous tenses, you can find the links in description. And if you have not subscribed my channel yet, please subscribe and press the bell icon with all notification so that my upcoming videos reach you easily. And thank you so much for your comments and likes. Past perfect continuous tense. This is the last tense of past series. What is past perfect continuous tense? First of all, we will look at the introduction. It is used to express a continued or ongoing action that started in the past and continued until some time in past. Very important point to remember here, an ongoing action in past which continued till some time in past. It's mean past in past. There will be a time reference such as since 1980 for 3 hours, etc., from which the action had started. ये एक ऐसा अमल है, एक ऐसे जारी अमल के इजहार के लिए इस ज़माने का इस्तेमाल, इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है जो माजी में ही शुरू हुआ था और माजी में ही कुछ अर्से तक जारी रहा था। यहाँ सबसे जो अहम बात याद रखने वाली ये है कि माजी में जारी कार्रवाई जो माजी में कुछ वक्त तक जारी रही और इसमें एक टाइम रेफरेंस टाइम का हवाला, वक्त का हवाला भी ज़रूर होता है, जैसे 1980 से 3 घंटे से जहाँ से ये अमल शुरू हुआ था। तो समझने की बात यह है कि जब इसकी हम पहचान करेंगे, आइडेंटिफाई से करेंगे, तो ये भी एक तरह का कंटिन्यूस टेंस है। लेकिन मसला ये है कि अगर हम इसके साथ टाइम रेफरेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये सिंपल पास्ट जो है कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। सो डिफरेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वो ज़माने टाइम रेफरेंस का है। अगर टाइम रेफरेंस होगा तो दिस विल बी कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और अगर उसमें टाइम रेफरेंस नहीं है तो भी ये सिंपल पास्ट कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस जो है वो कहलाएगा। A sense of time reference is found in these sentences which shows that action had started in past and continued till some time in past. Such time reference or sense of reference is the identity of present perfect continuous tense because it tells that action has started from a particular time in past or for some time period. For example, he had been studying in the school since 2005. So it means that he had started his education in this school in 2005 and he studied in the school till some time in past. तो इन जुमलों में वक्त का हवाला जैसे मैंने पहले ही भी आपको बताया है कि वो ज़रूर पाया जाता है, जिससे ये मालूम होता है कि जो एक्शन था, जो अमल था, वो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही कुछ अरसा तक जारी रहा था, क्योंकि ये बताता है कि माजी में किसी ख़ास वक्त से या कुछ अरसे से अमल शुरू हुआ है। मिसाल के तौर पर वो 2005 से इस स्कूल में तालीम हासिल कर रहा था, लिहाजा आप इस फ़िक्रे को देख के आसानी से समझ सकते हैं कि उसने अपनी तालीम जो है 2005 में इस स्कूल में शुरू की थी और उसने कुछ अर्सा पहले तक इस स्कूल में तालीम हासिल की थी। इसका
साफ और वाज़ेह मतलब ये है कि ऐसा काम जो माजी में ही शुरू हुआ था और माजी में ही कुछ अर्सा तक जारी रहा था। Very important and crucial note, if there is no time reference or sense of time reference, then it is not past perfect continuous tense, because there is no hint about the time of action when it started in past or continued for some time period. So it seems just an ongoing action in past which resembles past continuous tense. So the reference of time differentiates between past perfect continuous tense and past continuous tense. तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि टाइम का हवाला इसमें ज़रूर होता है। अगर हम फ़र्क देखना चाहते हैं सिंपल जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, तो दोनों में फ़र्क यही होगा कि टाइम का हवाला ज़रूर होगा। जैसा कि अगर हम मिसाल दे सकते हैं कि वो 1990 से इस कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो इसका मतलब एक टाइम रेफरेंस ज़रूर था। अगर हम कहेंगे कि वो पढ़ा रहा था, तो इसका मतलब है कि ये सादा जो है सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज द टाइम रेफरेंस। Important rules for this specific tense. First of all, helping verb. Helping verb of this tense is had been is used in sentence. First form of verb plus ing is used as main verb in a sentence. Since or for is used before the time reference in sentence. So these are two important words, since and for. These two words are used for the time reference in a sentence. If the time reference is exactly known, such as 1995, 4 o'clock, then since is used before the time in sentence. तो helping verb इसके had been है, और जो पहली फॉर्म इसमें यूज़ होती है ing का, उसमें एडिशन करते हैं। सिंस और फॉर ऐसे दो लफ्ज़ हैं जो टाइम के, जो वक्त के हवाले के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जहाँ जो टाइम का हवाला हमें मुकम्मल तौर पर उसका पता है, उसकी डेट, उसकी ईयर हमें पता है, जैसे टाइम है तो टाइम का पता है, तो उन फिक्रों में, उन सेंटेंसेस में हम टाइम रेफरेंस के लिए जो है वो यूज़ करेंगे सिंस। And if the time reference is not exactly known, such as 3 hours, 6 years, 4 days, then for is used before the time in sentence. So the time reference such as 3 hours or 5 days is not exactly known because we don't know that about which 3 hours a day is told in sentence or about which 5 days in a month is told in sentence, while the 1995 is exactly known time. तो थोड़ा सा क्लियरली इसको समझे कि वक्त का हवाला जहाँ वक्त का मुकम्मल तौर पे हमें नहीं पता होता, जैसे कि 3 घंटे से, 6 साल से, 4 दिन से, तो वहाँ हम फार का इस्तेमाल करते हैं। तो टाइम रेफरेंस जहाँ 3 घंटे, 5 घंटे, यहाँ हमें बिल्कुल नहीं पता कि कौन से दिन के 3 घंटे हैं और कौन से डेज जो हैं वो मंथ के हैं। सो दैट्स वाई दीज टाइप ऑफ टाइम्स आर एग्जैक्टली अननोन। तो जब वो नोन नहीं है तो फिर हम उसके लिए फार का इस्तेमाल करेंगे, और जब टाइम का हमें एग्जैक्टली पता है, जैसे 1995 है, 2005 है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे है, दिन का पता है एग्जैक्टली, तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे वहाँ सिंस का। सिंस उस वक्त इस्तेमाल होता है जब फिक्रा में मुकर्ररा वक्त दिया गया हो। पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं, मसलन दोपहर से, शाम से, सुबह से, रात से, अगस्त से, 11 बजे से, 2005 से, वगैरह वगैरह। इस तरह का जितनी भी चीज़ें होंगी उसके साथ आप जो है वो सिंस का यूज़ करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और फार कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब फिक्रा में टाइम दिया गया हो, मुद्दत दी गई हो, मसलन 5 मिनट से, 5 घंटे से, 4 साल से, 10 साल से,
इस तरह के जो है ना कई सालों से वगैरह वगैरह, इसके साथ हम जो है वो फार का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक मुझे आई होप कि आपको सिंस और फार और इस टेंस के जो कुछ रूल्स मैंने आपको बताए हैं वो खासी हद तक आपको समझ आ चुके होंगे। इसमें इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन है, और जो इसमें फॉर्म यूज़ होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी जो है उसमें एडिशन करके हम इसके इस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखिए क्लियरली फार और सिंस का डिफरेंस क्या है। फार हम यूज़ करेंगे फॉर 20 मिनट्स, 3 days, 6 months, 4 years, 2 centuries, a long time, ever, etc., etc. And since we will use with 6:15 p.m. Monday, September 1994, 1800. I left school, since I left school, since the beginning of time. तो यहाँ भी आपको समझ आ जानी चाहिए कि फार हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। 20 मिनट के लिए, 3 दिन के लिए, 6 माह के लिए, 4 साल के लिए, 2 सदियों से लंबे अरसे के लिए, और कभी भी नहीं, एवर के लिए भी। और सिंस हमें इस्तेमाल करेंगे जैसे 6:15 बजे से, 7 बजे से, 8 बजे से, मंडे से, सितंबर से, 1994 से, 1800 से, जब से मैंने स्कूल छोड़ा उससे, फॉर एग्जांपल इस तरह की चीज़ें जो हैं द बिगिनिंग ऑफ टाइम, उनके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और ज़्यादा मैंने इसको आसान करने की कोशिश की है। होप्स हो कि आपको फार सिंस का आप जो डिफरेंस है वो भी काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, उर्दू में फ़िक्रात की पहचान, ये साथ साथ थोड़ा सा उर्दू में मैंने इसलिए भी बताया है कि ये जो है ग्रामेटिकली जो 9th-10th के जो हैं पाकिस्तान में पंजाब बोर्ड के जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है ये ट्रांसलेशन जो है टेंसेस की, चूँकि वो पार्ट ऑफ देयर सिलेबस, तो दैट्स वाई मैंने थोड़ा सा उर्दू में भी करने की कोशिश की है। और दूसरे जो लर्नर ऐसे हैं जो थोड़ा सा बाइलिंगुअल को इजीली जो है अंडरस्टैंड कर जाते हैं, इसलिए मैंने इसको साथ उर्दू में भी ट्रांसलेट किया। उर्दू में अगर फ़िक्रात की पहचान देखें तो इसके फ़िक्रों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है, और वक्त का हवाला ज़रूर दिया जाता है। बहुत अहम बात यहाँ देखने वाली, इसकी पहले हमने इसी लेसन में 2-4 दफ़ा बात भी कर चुके हैं कि रहा था, रही थी इसके आखिर में आएगा, लेकिन वक्त का हवाला ज़रूर होगा। अगर वक्त का हवाला नहीं होगा तो ये सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। मसलन वो सुबह से खेल रहा था, वो शाम से टीवी देख रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि इसमें सुबह का टाइम दिया है, इसमें शाम का टाइम दिया है, तो इसलिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। सिंस और फार जो है वक्त के हवाले के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। So look at the helping verbs of this tense. Had been is used as a helping verb in this tense. And the form of verb, first form of verb plus ing is used in the sentences of this tense. So now come towards the structure of sentence. How would we make the sentence, how would we translate the sentences of past perfect continuous tense? Positive sentences, first of all we will translate subject, then helping verb which is had been, and then first form plus ing, and then object, and then lastly time reference. इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट टू ट्रांसलेट करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड बीन, और देन जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ, और ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद टाइम रेफरेंस होगा। आई हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 1 hour. She had been playing chess since 7 o'clock. They had been reading books since morning. देख सकते हैं आप क्लियरली कि हैड बीन का इस्तेमाल है, सब्जेक्ट है, देन हैड बीन जो है हेल्पिंग वर्ब है, देन लुक एट द वर्ब वेट plus ing, waiting we have used here because of continuous tense, and then time reference for 1 hour. Same as the case in the second sentence, she had been playing chess since 7 o'clock. चूँकि यहाँ 7 o'clock है इसलिए since यूज़ किया है, and they had been reading books since morning, चूँकि सुबह से है
और टाइम का पता है एग्जैक्टली, सो सिंस हमने इसमें इस्तेमाल किया है। सो नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे जी? सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस बीन। Look at carefully here. We have placed not between had and been. So in this way, we will make the negative sentences of past perfect continuous tense. Then first form of verb, then ing, then object, then time reference. I had not been waiting for him for 1 hour. She had not been playing chess since 7 o'clock. They had not been reading books since morning. तो यहाँ देखिए आप जी, सब्जेक्ट जब नेगेटिव हमने ट्रांसलेट करने की इसको कोशिश की है तो सब्जेक्ट है पहले, देन हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ एक देखने वाली बात है कि जो नॉट है नेगेटिव करने के लिए हमने जो हेल्पिंग वर्ब है उनके दरमियान में प्लेस किया हैड नॉट बीन, देन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ, देन ऑब्जेक्ट है और फिर टाइम रेफरेंस है। ये सारी एग्जांपल में आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। फॉर 1 hour had not been, she had not been playing chess since 7 o'clock, they had not been reading books since morning. So lastly, interrogative sentences. How would we make interrogative sentences of past perfect continuous tense? First of all, we will place the had at the start of the sentence, then subject, then been, and then first form of verb plus ing and plus object plus time reference. Had I been waiting for him for 1 hour? Had she been playing chess since 7 o'clock? Had they been reading books since morning? सो आप अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हुए सबसे पहले जो हम क्या काम करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड है हैड उसको स्टार्ट में ले आएंगे, देन सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे, फिर उसका जो हेल्पिंग वर्ब का दूसरा वर्ड है बीन उसे प्लेस करेंगे, फिर हेल्पिंग जो फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी वो एज इट इज़ आएगी, देन ऑब्जेक्ट एंड देन टाइम रेफरेंस। और इन एग्जाम्पल में आप क्लियरली देख सकते हैं, हैड आई बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 1 hour, हैड शी बीन प्लेइंग chess since 7 o'clock, had they been reading books since morning. So my dear students, I hope so कि आपको काफ़ी हद तक जो है वो इसकी समझ आ चुकी होगी। So thanks for watching. Wait till next video. See you next inshallah with an other video. Allah Hafiz.